Come student, we start new point Thomson's plum pudding model of atom. Thomson plum pudding anuprarup. The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure. According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it. The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electrons. Therefore, the atom becomes electrically neutral. बघा थॉम्सनचं प्लम पुडिंग अणुप्रारूप जे आहे हे कसं आहे. अणुसंरचनेचे पहिले प्रारूप म्हणजे थॉम्सन यांनी सन 1904 मांडलेले सर्वत्र धनप्रभार पसरलेला असतो. म्हणजे 1904 त्यांनी मांडलं हे प्लम पुडिंग प्रारूप आणि या प्रारूपानुसार अणूमध्ये सर्वत्र धनप्रभार पसरलेला असतो व त्यामध्ये ऋणप्रभारित इलेक्ट्रॉन जडवलेले असतात. पसरलेल्या धनप्रभारांचे संतुलन इलेक्ट्रॉनवरील ऋणप्रभारामुळे त्या ठिकाणी होते. म्हणजे त्या ठिकाणी धन आणि ऋण दोन्हीही प्रभार त्या ठिकाणी असतात. त्यामुळं दोन्हीही प्रभार असल्यामुळं त्यांचं संतुलन त्या धन आणि ऋण प्रभार संतुलन त्या ठिकाणी होत असतं. त्यामुळं अणू विद्युत प्रभारदृष्ट्या उदासीन त्या ठिकाणी होतो. म्हणजे दोन्हीची संख्या सारखी असल्यामुळं अणू हा जो आहे धन आणि ऋणची संख्या सारखी असल्यामुळं अणू हा त्या ठिकाणी काय होतो उदासीन होतो. उदासीन होतो म्हणजे तो धन किंवा ऋण कोणतेच त्या ठिकाणी दाखवत नाही. तर या आपल्या स्क्रीनवर थॉम्सनचं प्लम पुडिंग मॉडेल ऑफ ॲटम प्लम पुडिंग अणुप्रारूप या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. तर या ठिकाणी प्लम म्हणजे काय आपण या ठिकाणी समजून घेऊ. प्लम पुडिंग और प्लम केक इज अ स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग Christmas. In old times, this dish was made in Western countries by adding pieces of dried fruit called plum. These days, raisins or dates are used. बघा प्लम पुडिंग किंवा प्लम केक हा गोड खाद्यपदार्थ ख्रिसमस या सणामध्ये बनवतात. ख्रिसमस सण तुम्हाला पूर्वी पाश्चात्य देशात या पदार्थात प्लम या फळाचे सुकवलेले तुकडे घालत असत. हल्ली प्लमऐवजी बेदाणे किंवा खजूर या ठिकाणी वापरतात. तर थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडेल जे आहे ॲटम ह्याच्यासंबंधी एक छोटासा व्हिडिओ आपण या ठिकाणी पाहू आपण. You will learn about Thomson's atomic model. Are the charged particles arranged in any particular manner? Are the charged particles spread throughout the atom, or are they concentrated in one place? To answer these questions,
Let's go back in time. Dalton's atomic theory stated that an atom was indivisible and indestructible. However, in 1886, Goldstein came upon positively charged radiations in a gas discharge, which he termed as Cannon rays. These radiations led to the discovery of the proton. The mass of a proton was about 2,000 times that of an electron, and it carried a positive charge. Around the year 1900, J.J. Thomson conducted experiments on the beams of particles inside a glass tube called a cathode ray tube. He found that the particles were attracted to the positive terminal of the tube. Thomson concluded that the particles must be negatively charged and called these particles electrons. An electron has a negligible mass and has a charge of -1. These discoveries made the scientists believe that an atom was divisible and made up of electrons and protons. What they didn't know at the time was how these electrons and protons were arranged within an atom. They tried to understand this arrangement through various experiments. J.J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding. The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. This can also be explained through the example of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red, fleshy part of the watermelon, while the electrons are embedded into the atoms like the seeds of the watermelon. The oppositely charged particles are held together by electrical force of attraction. Thomson concluded that an atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere. An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal. As per Thomson's conclusion, the electrons were embedded in a sphere of positive charge. This conclusion, however, was incorrect. Thomson asserted that the positive charge spread through the atom held the negatively charged electrons due to electrical forces. This assertion failed to explain many experimental observations. In this module, you have learnt that atoms are made of charged particles. According to Thomson's model, an atom is a positively charged sphere with electrons set within it. An atom is electrically neutral. Shortcomings of Thomson's model are his incorrect assumptions. Electrons are embedded in positive charge. Positive charge in the atom holds the negatively charged electrons. Can you recall, if the striker flicked by you misses the coin that you aimed at, where would the striker go? Second is, if the striker hits the coin. First question is, can you tell me, if the striker flicked by you misses the coin that you aimed at, where would the striker go? Second is, if the striker hits the coin, in which direction would it go? Straight, forward,
to a side or in the reverse direction. बघा याच्यामध्ये सांगा पाहू मी तुम्हाला काही प्रश्न आहेत. तुम्ही स्ट्रायकरनं सोंगटीवर धरलेला नेम चुकला तर स्ट्रायकर कोणत्या दिशेने जाईल. आणि दुसरं आहे नेम बरोबर लागला तर स्ट्रायकर कोणत्या दिशेला जाईल, सरळ पुढे की बाजूला अथवा उलट दिशेला जाईल. हे तुमच्यासाठी प्रश्न आहे. रुदरफोर्ड्स न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ ॲटम. रुदरफोर्डचे केंद्रकीय अणुप्रारूप 1911. रुदरफोर्ड्स न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ ॲटम. रुदरफोर्डचे केंद्रकीय अणुप्रारूप 1911 त्यानं काढलेलं आहे. रुदरफोर्डचा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट आहे, हा विकिरण प्रयोग आहे. हा प्रयोग आपण या ठिकाणी समजून घेऊ आपण. Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड यांनी त्याच्या सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोगाने अणूच्या अंतरंगाचा वेध घेतला व सन 1911 अणूचे केंद्रकीय प्रारूप मांडले. रुदरफोर्ड टूक ए व्हेरी थिन गोल्ड foil thickness is 10⁻⁻⁴ mm and bombarded it with positively charged alpha particles emitted by a radioactive element. He observed the path of alpha particles by means of a fluorescent screen around the gold foil. It was expected that the alpha particles would get reflected from the gold foil if the positively charged mass very evenly distributed inside the atoms. Unexpectedly, most of the alpha particle went straight through the foil. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected through a larger angle and surprisingly, one alpha particle of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path. The large number of alpha particles that went straight through the foil indicate that there was no obstacles in their path. It meant that there must be mainly an empty space inside the atoms in the solid gold foil. The small number of alpha particles that get deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. It meant that the positively charged and heavy part causing obstruction would be in the center of the atom. From this, Rutherford put forth a nuclear model for atom as follows. One of them is there is a positively charged nuclear at the center of atom. Second is almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. Third is negatively charged particles called electron
revolve around this nucleus. Fourth is the total negative charge on all the electron is equal to the positive charge on the nucleus. As the opposite charges are balanced, the atom is electrically neutral. And last is there is an empty space between the revolving electrons and the atomic nucleus. बघा या ठिकाणी रुदरफोर्डचं केंद्रकीय अणुप्रारूप जे आहे हे कसं आहे, रुदरफोर्ड यांनी सोन्याच्या अतिशय पातळ पत्रा, जाडी जवळपास 10⁻⁴ मिलीमीटर घेऊन त्यावर किरणोत्सारी मूलद्रव्यातून उत्सर्जित होणाऱ्या धनप्रभारित अल्फा कणांचा मारा केला व कणांचा मार्गाचा वेध घेतला. तुम्ही आकृतीमध्ये ते पाहू शकता. तुम्ही या ठिकाणी सोन्याचा पातळ पत्रा हा या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणी याच्यातून अल्फा कणचा मारा या ठिकाणी या बीममधून या सोन्याच्या पत्र्यावर त्या ठिकाणी होतो. सोन्याच्या पत्र्याभोवती लावलेल्या प्रतिदीप्तिमान पडदा लावून त्यांनी जर अणूमध्ये धनप्रभारित वस्तुमानाचं वितरण सर्वत्र एक समान असेल तर धनप्रभारित अल्फा कणांचे पत्र्यावरून परावर्तन होईल अशी अपेक्षा होती. या ठिकाणी हे फ्लोरोसंट स्क्रीन आहे, प्रतिदीप्ती पडदा, हे स्लीट आहे, चिर आहे. या ठिकाणी हा सोन्याचा गोल्ड स्लीट आहे, फॉईल आहे. हे पार्टिकल इमिटर, या ठिकाणी अल्फा कण या ठिकाणी उत्सर्जित केले जातात. या ठिकाणी अनपेक्षितपणे बहुसंख्य अल्फा कण पत्र्यातून आरपार सरळ गेले. काही थोड्या प्रमाणामध्ये मूळ मार्गापासून लहान कोनातून त्यांचं विचलन झालं. आणखी थोड्या अल्फा कणांचं मोठ्या कोनातून विचलन झालं. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी हे जे पिवळ्या कलरचे जे आहे त्या रेषा पुढे आलेल्या, हे पुढे गेलेले सोन्याच्या पातळ पत्र्यातून पुढे गेलेले किरण आहेत, ते अल्फा किरण. तर ते अल्फा किरण जे आहेत, पार्टिकल्स जे आहेत, यांचं विचलन काही कमी कोनातून झालं, काही कोणाचं जास्त कोनातून झालं. आणखी थोड्या अल्फा कणांचं मोठ्या कोनातून विचलन झाले आणि आश्चर्य म्हणजे 20,000 पैकी एक अल्फा कण मूळ मार्गाच्या उलट दिशेने उसळला. तर या ठिकाणी आपण या आकृतीचं आपण समजून घेतलेलं आहे. आता मोठ्या संख्येने आरपार गेलेले अल्फा कण असे दर्शवतात की त्यांच्या वाटेमध्ये अडथळा नाही. म्हणजे जे आरपार गेले याचा अर्थ काय, त्यांच्या वाटेमध्ये कोणीच नाही आहे, त्यांचा मार्ग कोणी अडवलेला नाही आहे. याचा अर्थ असा होतो की सोन्याच्या स्थायीरूप पत्र्यामधील अणूच्या आतमध्ये बरीचशी पोकळी जागा त्या ठिकाणी असली पाहिजे. त्यामुळं हे अल्फा कण किरण सरळ त्या ठिकाणी पुढे गेले. ज्या थोड्या अल्फा कणांचं लहान किंवा मोठ्या कोनातून विचलन झालं त्यांच्या वाटेत अडथळा असेल. ज्याचं विचलन झालं म्हणजे मार्ग त्यांनी बदलला, त्यांच्या वाटेमध्ये थोडं अडथळा असेल म्हणून त्यांचं विचलन मार्ग त्यांनी बदललेला आहे. याचा अर्थ अडथळ्यास कारण असलेल्या अणूचा धनप्रभारित व जड भाग अणूच्या मध्यभागी होता. याचा अर्थ असा आहे की अडथळा निर्माण झाला. याचा अर्थ काय आहे की अणूचा धनप्रभारित व जड भाग अणूच्या मध्यभागी होता. यावरून रुदरफोर्डने पुढील प्रमाणे अणूचे केंद्रकीय प्रारूप त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे. हे प्रारूप कसं आहे ते लक्षात घ्या. अणूच्या केंद्रभागी धनप्रभारित केंद्रक असते. अणूची संरचना आपण अभ्यासलेली आहे. अणूच्या केंद्रभागी धनप्रभारित केंद्रक असतं. केंद्रकात अणूचं जवळजवळ सर्व वस्तुमान एकवटलेलं असतं. म्हणजे पूर्ण अणूचं वस्तुमान जे आहे ते वस्तुमान कुठं असतं, अणूच्या केंद्रकात असतं. केंद्रकाभोवती इलेक्ट्रॉन नावाचे ऋणप्रभारित कण परिभ्रमण करत असतात. केंद्रकाच्या सभोवताली कक्षामध्ये, ऑर्बिटमध्ये, कवचामध्ये इलेक्ट्रॉनचं फिरणं त्या ठिकाणी सुरू असतं, परिभ्रमण त्या ठिकाणी सुरू असतं.
केंद्रकाच्या सभोवताली सर्व इलेक्ट्रॉनवरील एकत्रित ऋणप्रभार हा केंद्रकावरील धन प्रभारा एवढा असल्याने विजातीय प्रभारांचं संतुलन होऊन अणू हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन बनतो. म्हणजे केंद्रकामध्ये प्रोटॉनचे कण असतात, ते धनप्रभारित असतात, आणि केंद्रकाच्या बाहेर हे इलेक्ट्रॉन असतात, ते ऋणप्रभारित असतात. पण जेवढे प्रोटॉनची संख्या असेल तेवढी इलेक्ट्रॉनची संख्या असते. म्हणजे जेवढे धनप्रभारित कण आहेत तेवढेच ऋणप्रभारित कण आहेत. त्यामुळं त्या ठिकाणी अणू जो आहे विजातीय प्रभाराचं संतुलन त्या ठिकाणी साधलं जातं, आणि त्यामुळं अणू हा विद्युतदृष्ट्या कसा असतो, उदासीन असतो. म्हणजे तो धनही दाखवत नाही आणि ऋणही दाखवत नाही. परिभ्रमण करणारे इलेक्ट्रॉन व अणुकेंद्रक यांच्या दरम्यान पोकळी असते. म्हणजे अणुकेंद्रक आणि अणूच्या केंद्रकाच्या सभोवताली जे इलेक्ट्रॉन फिरत असतात, परिभ्रमण करत असतात, त्यांच्या मधल्या जागेमध्ये जागा कशी असते, मोकळी असते, पोकळी असते. तर याच्या संबंधी एक छोटासा व्हिडिओ या ठिकाणी आपण आता पाहू. त्याच्यातली थोडी माहिती किंवा मी आत्ता पुस्तकातली जी माहिती आहे सांगितलेली त्याच्यामध्ये थोडाफार फरक असू शकतो. तर तो तुम्ही व्हिडिओ पहा, म्हणजे तुम्हाला जास्त चांगल्या प्रकारे समजेल. आज हम बात करेंगे गेगर-मास्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी एक्सपेरिमेंट का देन है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है इसका कॉन्सेप्ट लोगों के सामने क्लियर हुआ, ज्यादा क्लियर हुआ. इसका सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस दौरान और उससे पहले लोग क्या मानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. तो लोग ये माना करते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर करके रखता है, और इसी के चारों तरफ या इसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. सो नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर यहां से चिपका हुआ रहता है. इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. और चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है पहली बार जे थॉमसन ने दिया था, तो इसे थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है. सो हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल और साथ साथ थॉमसन मॉडल भी कहते हैं. थॉमसन मॉडल, सो प्लम पुडिंग मॉडल. सो ये माना जाता था पहले. ये जो आप देख रहे हैं ये है नेगेटिव चार्ज. सो ये नेगेटिव चार्ज है, और इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे स्पेस को अक्वायर कर रखा है. सो पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा स्पेस अक्वायर कर रखा है. सो ये था थॉमसन मॉडल, जो कि उस दौरान लोग माना करते थे. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, एटम का मॉडल ऐसा नहीं है, कुछ और है. तो कुछ और क्या है, इसे समझने से पहले चलिए देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम के हिसाब से कैसे हमने ये समझ लिया कि ऐसा मॉडल, थॉमसन मॉडल, एटम का नहीं हो सकता है. तो ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप. यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये एक कलेक्टर है और कुछ नहीं है, और यहाँ पर ये है सोर्स. अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अंदर. आगे यहाँ पर जो फेस हमें नहीं दिख रहा, उस फेस में एक छेद है, उस छेद से अल्फा पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा. और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्लिट है, खाली जगह है, जहां से कि अल्फा पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाएगा और पीछे जाके यहाँ पर इस शीट से टकराएगा. ये एक गोल्ड लिफ है,
बहुत पतला गोल्ड लीफ है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यह है गोल्ड शीट, बहुत ही पतला गोल्ड शीट। तो ये बहुत पतला शीट है। अब होता यह है कि इंसिडेंट करता है अल्फा पार्टिकल्स यहां पर इस शीट में और ये स्कैटर कर जाता है। उस स्कैटरिंग के रिजल्ट से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रेडिएशन कैसे जाएगा। यहां से रेडिएशन इस तरह से फॉल करता है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। उसका बीम है, अल्फा पार्टिकल बीम है। ये इंसिडेंट करता है और इंसिडेंट करने के बाद ये स्कैटर कर जाता है इस तरह से। और जो रिजल्ट में पाया गया इस एक्सपेरिमेंट पे, वो रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाया गया कि जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो समझ ले 0.14% कितना हो सकता है। 10,000 में से 14, सिर्फ 14, 10,000 में से 10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है। मतलब 10,000 में से 9,986 अल्फा पार्टिकल जो, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इस बीम से आगे बढ़ते हुए बिना डेविएटेड हुए ही इंसिडेंट कर जाएगा पीछे स्क्रीन में या कलेक्टर में। बहुत बहुत कम से 9,000। रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाया गया कि जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो समझ ले 0.14% कितना हो सकता है। 10,000 में से 14, सिर्फ 14, 10,000 में से 10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है। मतलब 10,000 में से 9,986 अल्फा पार्टिकल जो है वो लगभग बिना डेविएट किए ही आगे बढ़ जाता है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इस बीम से आगे बढ़ते हुए बिना डेविएटेड हुए ही इंसिडेंट कर जाएगा पीछे स्क्रीन में या कलेक्टर में। बहुत बहुत कम, इतना बहुत कम वो डेविएट करता है 1 डिग्री से ज्यादा। और भी ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 0.0125% पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल्स, अब इसका इस परसेंटेज का मतलब भी समझ ले, 8,000 में से सिर्फ 1, सो इतना कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया। इस फिगर में देखें एक वैसा दिखाया गया है पार्टिकल जो कि ये वाला है। तो मतलब क्या निकला इससे? मतलब यही निकला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गए। अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम के सारा स्पेस को एक्वायर कर रखता है, तो फिर सारे के सारे जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां इंसिडेंट कर रहा है सारे के सारे रिबाउंड हो जाते। ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर पास कर गया। तो ज्यादातर जब पास कर गया इस गोल्ड शीट को, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खाली जगह है एटम में। सो कंक्लूजन ये निकला कि एटम ज्यादातर खाली है और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है जिसे कि हम बाद में न्यूक्लियस कहने लगे, ये बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, इसीलिए तो ज्यादातर यहां से पास कर जा रहा है। वरना न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, वो अगर बड़ा होता है, एटम जैसा उसका साइज होता, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल कह रहा है, तो फिर अल्फा पार्टिकल पास कैसे करता? उसे जगह कहां से मिलता पास करने का? उसे तो रिपेल कर देता, चूंकि अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का ही आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो रिपेल्ड हो जाता न्यूक्लियस से। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर एटम जो है वो खाली होता है और हमें आज पता भी है ये। सो ज्यादातर मास जो है वो कंसंट्रेटेड है एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन में, जिसे कि हम अभी कहते हैं न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो तो बीच में है ही, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है।
इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हो सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अगर ये रिवॉल्व नहीं कर रहा हो तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ सट जाएगा, और सट गया तो फिर ये प्लम पुडिंग मॉडल आ गया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि खाली जगह चाहिए होगा इन अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड शीट को पार करने के लिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चारों तरफ घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आउटकम। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे अभी हम बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल जिसे कहा जाता है, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। ये सही तो है, गलत नहीं कहा जाता इसे, ये सही है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। इससे भी बेहतर मॉडल है बोर्स मॉडल, जो कि इसके ड्रॉबैक्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया था कि एटम ज्यादातर खाली होता है, एम्प्टी होता है, और बीच में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिसाइड करता है बिल्कुल सेंटर में। इसका जो मैसिव पार्ट है और इसका सारा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक पे। देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर रिवॉल्व करेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से भी रिवॉल्व करे तो भी इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगा। मान ले इसका कांस्टेंट स्पीड x है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये इस डायरेक्शन में x के स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये कुछ दूसरे ही जगह पे पहुंच जाएगा, ये यहां से मान ले कुछ आगे बढ़ जाता है, यहां पर अगर आप इसका स्पीड देखें तो मान ले कांस्टेंट स्पीड है, तो x ही इसका स्पीड है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो इसका वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हमें पता है वेलोसिटी जब कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और हमें यह भी पता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर ये एक्सीलरेशन में रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। इसका मतलब अगर कांस्टेंटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करे, ये चार्ज्ड पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये हमेशा घूम रहा है और हमेशा घूमने का मतलब है हमेशा ये एक्सेलरेटेड है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। इसका मतलब हमेशा ये एनर्जी जो है ये लूज करेगा। तो एनर्जी जब ये लूज करेगा तो इसका जो ऑर्बिट है ये छोटा होते जाएगा, और ये ऑर्बिट छोटा होते हुए एक समय ऐसा आएगा जब इसका एनर्जी बहुत घट जाएगा और ये जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियस में समा जाएगा तो इसका जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो तो न्यूक्लियस के साइज का हो जाएगा। तो फिर जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें आउटकम मिला वो तो फिर गलत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज नहीं कर सकता है इस तरह से कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करने के कारण, तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक है। और इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए नया एटॉमिक मॉडल लाया गया, और इसे लाया बोर ने, जिसे कि बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। यूज युअर ब्रेन पॉवर. जरा डोकं चालवामध्ये इथं काही प्रश्न दिले, ते प्रश्न मी वाचतो. तुम्ही ते प्रश्न लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करा आणि उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करा. विच डिस्कवरी डीड पॉइंट आउट दॅट ॲन ॲटम हॅज अ इंटरनल स्ट्रक्चर. अणूला अंतर्गत संरचना आहे हे कोणत्या शोधामुळं लक्षात आलं. आता हे जे प्रश्न आहेत आपण आतापर्यंत जे शिकलो त्याच्यावर आधारित आहेत. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द सॉलिड ॲटम इन डॉल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी
अँड थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल. डॉल्टनच्या अणुसिद्धांतामधील भरीव अणू व थॉम्सनच्या प्रारूपातील भरीव अणू यांच्यात फरक काय? एक्सप्लेन द डिफरन्स बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज इन थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल अँड रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. थॉम्सनच्या अणुप्रारूपातील धनप्रभाराचं वितरण व रुदरफोर्डच्या अणुप्रारूपातील धनप्रभाराचं वितरण यातील फरक स्पष्ट करा. हे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न आतापर्यंत जे आपण शिकलो त्याच्यावर आधारित आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करा. यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हॉट इज द पॉईंट डिफरन्स बिटवीन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ॲटॉमिक मॉडेल्स ऑफ थॉम्सन अँड रुदरफोर्ड. थॉम्सन व रुदरफोर्ड यांच्या अणुप्रारूपामध्ये इलेक्ट्रॉनच्या स्थितीसंबंधात काय वेगळेपणा आहे? व्हॉट इज द थिंग विच इज प्रेझेंट इन रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल अँड नॉट प्रेझेंट इन डॉल्टन्स अँड थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल्स. डॉल्टन व थॉम्सनच्या अणुप्रारूपात नसलेली कोणती गोष्ट रुदरफोर्डच्या अणुप्रारूपात आहे? हे प्रश्न आहेत काही या ठिकाणी. अँड एस्टॅब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स अँड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिव्हॉल्विंग in a circular orbit. Its energy decreases. According to this law, the atom described in Rutherford's model turns out to be unstable in reality. However, all atoms except radioactive atoms are stable. This shortcoming of Rutherford's atomic model was removed by the atomic model put forth by Niels Bohr in the year 1913. बघा या ठिकाणी वर्तुळकार कक्षेत परिभ्रमण करणाऱ्या विद्युत प्रभारित वस्तूची ऊर्जा कमी होते असा भौतिकशास्त्रातील प्रस्थापित नियम आहे. म्हणजे वर्तुळकार कक्षेमध्ये ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन फिरतात त्यावेळेस त्यांची ऊर्जा कमी होते असा भौतिकशास्त्रातील नियम आहे. ह्या नियमानुसार रुदरफोर्डने मांडलेल्या प्रारूपातील अणू अस्थायी ठरतो. मात्र प्रत्यक्षात किरणोत्सारी अणू सोडून इतर सर्व अणूंना स्थायी भाव असतो. रुदरफोर्डच्या अणुप्रारूपातील ही त्रुटी निल्स बोर यांनी सन 1913 मांडलेल्या अणुप्रारूपाने दूर झाली. ह्याच्याविषयी माहिती आपण पुढच्या तासिकेमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न करू. तर या ठिकाणी आपण थांबू. आपण